हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं ज्योग्राफी के चैप्टर यानी ज्योग्राफी जो भूगोल है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है क्योंकि इसमें हम भूगोल के विषय में बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Frequency of the Indian Ocean. There is the most important here, Indian Ocean. The pattern of circulation of the current is the Indian Ocean differ from the general pattern of the circulation in the Antarctica Oceans and the Pacific Ocean. And this is because Indian Ocean is blocked by the continental masses in the north. The general pattern of circulation in the southern section of the Indian Ocean is anti-clockwise as that of other oceans, but in the northern section there is a clear survival of the current is a winter and summer, and these are completely under the influence of the seasonal change of the monsoon winds. So there is a clear reversal of the current is the winters and summer season and southwestward during to northeast monsoon, and there are northeastward during to the southwest monsoon and variable during to transition season. Transition season is the most important for the currently of the Indian Ocean. During the winters is the Sri Lanka divided to the current of the Ariana Sea from to the those of the Bay of Bengal. The north equator current flow the westward just south to the Sri Lanka with the disconnected to counter equilateral current flow between it and the south equator current. At the time in the northern section, the wall of Bay of Bengal and Arabian Sea is under to the influence of the northeast monsoon. The northeast monsoon dry water of Bay of Bengal and the Arabian Sea the best water to circulate in the anti-clockwise direction, and this current is known as the northeast monsoon drift. Here show the map the current of the Indian Ocean winter. There is season of winter, but here a show of arrow. Dot arrow is a called current show here, and the warm current show is a directly arrow, and there is a direction show the arrow. There is a most important map here show in this screen. In a summer, the northern sections come under the influence of southwest monsoon, and there is a easterly movement of water in the Bay of Bengal and the Arabian Sea, and produce a clockwise circulation. And this current is known as the southwest monsoon drift. In the general, their summer currents are more regular than those of winter. Here show the map the current of the Indian Ocean in a summer. There is a show of summer. There is a most important. There is a dotted line is a show the called current, and the line arrow here is a bomb current. There is a most important that some difference on the winter and summer here. A map. There is a currently Indian Ocean. In the southern Indian Ocean, the south equatorial current is strengthened by there is a corresponding current of the Pacific Oceans. Flow from the east to the west, it turns southward along the coastal of the Mesozoic and Africa. A part of this is current which flow between to the mainland and the Madagascar island is known as the Mesozoic current. After the confluence of these two, current is called to the Angola current. It then return to easternward and the Mughal will their west wind drift. The west wind drift is a flow across the ocean to the west east direction in the higher latitude to the reach their southern tip of the Australia. A branch of this stems is turned northern to flow along the western coast of Australia as a called West Australian current. West Australian current is later joined to the south equatorial current to be complete the circuit. There is a most important. यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है अगला पॉइंट जो कि बहुत काफी इंपॉर्टेंट है, वो है हिंद महासागर धाराएं। देखिए, ये इंडियन ओशियन के नाम से जाना जाता है और हिंद महासागर जो है धाराएं काफी इंपॉर्टेंट भी रहता है। कहते हैं हिंद महासागर की धाराओं को जो है परिसंचलन का प्रतिरूप
और अंटार्कटिका महासागर एवं प्रशांत महासागर की धाराओं से थोड़ा भिन्न माना जाता है। क्यों? क्योंकि हिंद महासागर की धाराएं जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है और इसकी दिशाएं एक विशेष बातों पर निर्भर करता है। कहते हैं क्योंकि हिंद महासागर उत्तर पूर्व स्थल से घिरा हुआ है। अगर देखा जाए तो इसको जो है ये पूर्व में जो है महासागर जो है पूर्वोत्तर स्थल जो है घिरे हुए होते हैं और इसके दक्षिणी भाग में धाराओं के जो है परिसंचलन का सामान्य प्रतिरूप जो है वामवर्तीय होने के कारण ऐसा होता है, जैसा कि अन्य महासागरों में भी है। लेकिन इसके उत्तरी धाराओं में जो है शीत ऋतु एवं ग्रीष्म ऋतु में स्पष्ट रूप से अपनी दिशाएं पुनर्वर्त बदलती रहती है। यानी इसकी दिशाएं जो है समय समय पर बदलती रहती है और ये धाराएं जो है पूर्वतः बदलते हुए जो है मानसूनी मौसम के प्रभाव में ऐसा होता है और इसलिए शीत ऋतु एवं ग्रीष्म ऋतु में धाराएं उलट जाती है या धाराएं जो है विपरीत दिशाओं में बहने लग जाती है। अर्थात उत्तरी पूर्वी मानसून के दौरान इसकी दिशा दक्षिण पश्चिम की ओर होती है और दक्षिण पश्चिम जो है मानसून के दौरान उत्तर पूर्वी की ओर तथा संक्रमण काल में जो है अस्थिर धारा के रूप में होता है। यानी देखा जाए तो संक्रमण काल में जो है अस्थिर धाराओं के रूप में ये विस्तृत होती है। यहाँ पर जो आप देख रहे होगे मैप, यहाँ पर हिंद महासागर की धाराओं को जो है शीत ऋतु में इसका क्या प्रभाव होता है इसको यहाँ पर दर्शाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है तीर की जो है व्हाइट तीर जो है शीत ऋतु का परिचालक है और जो आपको डार्क तीर दिख रहा होगा वो उष्ण धारा के जो है परिचालक है। आप देख सकते हो कि भारत पे किस क्षेत्र पे जो है कैसा प्रभाव होगा। यहाँ पर अगर ऊपर आप देखोगे तो उत्तरी पूर्वी मानसूनी जो है धाराएं उपवाह जो दिखेगा, जो कि काफ़ी विशेषताओं को यहाँ दर्शाने के लिए ये मैप जो है काफ़ी पर्याप्त है। शीत ऋतु में श्रीलंका बंगाल की खाड़ी की धाराओं को जो है अरब सागर से धाराओं को जो है अलग कर देती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि शीत ऋतु में श्रीलंका जो है बंगाल की खाड़ी की धाराओं को अरब सागर से धाराओं को अलग कर देती है और श्रीलंका के ठीक दक्षिण में उत्तरी जो है विषमवर्ती धाराएं और दक्षिण जो है विषमवर्ती धारा पश्चिम की ओर बहती है। उत्तरी विषमवर्तीय धाराओं और दक्षिण विषमवर्ती धाराओं के मध्य एक विरुद्ध जो है विषमवर्ती धारा पश्चिम से पूर्व की ओर बहती चली जाती है और इस समय इसके उत्तरी भाग में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के जल को जो है उत्तरी जो है पूर्व मानसून प्रभावित करते हैं। यानी पूर्वी मानसून जो है काफ़ी इसको प्रभावित करता है तथा उन्हें जो है वामवर्ती दिशा में प्रभाव के लिए प्रेरित भी करता है और इस जलधाराओं को जो है उत्तर पूर्वी मानसून अपवाह कहते हैं। यानी इसका जो नाम दिया गया है उत्तर पूर्वी मानसूनी अपवाह। यहाँ पर जो आप मैप देख रहे होगे ये जो है हिंद महासागर की धाराएं हैं जो कि उष्ण के समय दिखाया गया, यानी गर्म दिनों में इसका प्रभाव कैसा होता है। आप यहाँ पर चित्रों से साफ देख सकते हो कि शीत ऋतु में इसकी धाराएं किस प्रकार जो है अपना रुख बदल लेती है और गर्मी के समय जो है इसका रुख कैसा होता है। तो यहाँ पर अरब सागर भी दिख रहा होगा आपको, मानसूनी के जो है एरो यहाँ पर दिखाया गया है। जो ब्लैक एरो है वो जो है उष्ण धाराओं को दर्शाता है और जो सिर्फ व्हाइट एरो है वो शीत धाराओं को दर्शाता है और इसकी जो एरो जिस साइड बनी हुई है इसकी पवनों की धारा जो है इसी तरफ आने को संकेत कर रही है। तो ये कहते हैं ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर मैप जो है दिखा रहा है और मैप से समझना काफ़ी आपके लिए फायदेमंद रहेगा। ग्रीष्म ऋतु में वही उत्तरी भाग जो है दक्षिण पश्चिम मानसून को प्रभाव में आ जाती है। कहते हैं बंगाल की खाड़ी एक अरब सागर का जल पूर्व की ओर बहने लगता है और इस समय जल का जो है परिसंचलन दक्षिणवर्ती या घड़ी की सुई के अनुकूल दिशा में होती रहती है और इस धारा को जो है दक्षिण पश्चिम मानसून अपवाह भी कहते हैं। सामान्यतः ग्रीष्म ऋतु की धाराएं शीत ऋतु की धाराओं से अधिक नियमित होती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि दक्षिण पश्चिम मानसून अपवाह कहते हैं और सामान्य जो है ग्रीष्म ऋतु की धाराएं शीत ऋतु की धाराओं से अधिक नियमित होती है, जो कि इसकी विशेषताओं को काफ़ी दर्शाता है। हिंद महासागर के दक्षिण भाग में विषमवर्ती धारा पूर्व से पश्चिम की ओर प्रभावित होती रहती है और अफ्रीका के मेजोविक तट के निकट यह धारा दक्षिण की ओर मुड़ जाती है और इस धारा का एक भाग अफ्रीका के मुख्य भूमि और जो है मेडागास्कर द्वीप के मध्य बहता है और इसे हम गर्मजाविक धारा भी कहते हैं। यानी इसका जो है मेडागास्कर द्वीप से मध्य बहता है और इसे गर्मजाविक धारा कहते हैं और दक्षिण की ओर बढ़ने पर यह जो है दक्षिणी विषमवर्ती धारा की उस शाखाओं से मिल जाती है जो है मेडागास्कर के तट के साथ बहती है। इस जो है संगम के बाद इसे जो है अगुहाल्स धारा कहते हैं। इसके बाद यह पूर्व की ओर मुड़ जाती है और पश्चिम जो है पवन अपवाह में मिल जाना इसकी स्वाभाविक
दर्शाता है, स्वाभाविकता को दर्शाता है। पश्चिम पवन जो है वह उच्च जो है अक्षांशों में महासागर की आर पार पश्चिम से पूर्व दिशा में बहता हुआ ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी तट तक पहुंचता है और इस धारा की एक शाखा उत्तर की ओर मुड़कर ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम तट के साथ साथ बहने लगती है और इसे पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा भी कहते हैं। और यह ठंडी जलधाराएं हैं। अंत में पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा जो है दक्षिणी विषुववर्ती धारा से मिलकर एक चक्र पूरा कर लेती है और जैसे एक चक्र पूरा करती है इसकी प्रक्रिया जो है वहीं पे खत्म हो जाती है।